Yes, so everyone, first paragraph I already explained you in my first video. Now the second paragraph, okay, on shore cream walls, donations, Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, walled flowery Trossel Valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future painted with a fog, a narrow street shielded in with a lead sky, far, far from rivers, caps, and stars of words. Okay, so now I explain you this paragraph. So now I told you the meaning of difficult words. So the word shore, SOUR, it means unpleasant. So here refers to the color of शोर क्रीम, ऑफ वाइट और क्रीमिश, ऑफ वाइट कलर या क्रीमिश कलर. ओके, जब पेंट नहीं होता एंड वाइट कलर जो है वो काफ़ी टाइम तक पेंट नहीं होता तो वो ऑफ वाइट हो जाता है. लाइक किसी कोई वाइट ड्रेस हो, कोई वाइट, उसमें उसका कलर ऑफ वाइट हो जाए बार बार वॉश करने की वजह से, या फिर पेंट अगर पेंट नहीं हुआ है कई टाइम से, बहुत टाइम से, तो वो ऑफ वाइट हो जाता है. इट्स कॉल्ड. डोनेशंस होता है. ओके, नाउ डोनेशंस मीन्स that things given or received in charity, जो चीज़ें चैरिटी में दी हुई होती हैं. ओके, that given in charity. ओके, and down means early morning or sunrise, okay. And civilized dome means civilized dome. So here the civilized dome, it means rising sun at the horizon, which is in the shape of a dome, semicircle, like semicircle shape. It was like semicircle. It's called horizon. Okay, when rising sun, so it was in the semicircle. When the sun rises, its shape is like semicircle, dome shape. Okay, Trossel Valley. So Trossel Valley means a beautiful ice-free valley in Austria. Okay, so Trossel Valley is a beautiful ice-free valley in Austria. Okay, shield. So shield means SEALED, shield. तो shield means shut or locked, कोई चीज़ लॉक करनी, कोई बंद कर देनी, shut down. Okay, it means shut or locked. Okay, and lead, lead means lead. Here in this paragraph, in this poem, lead means the dark future of kids. Okay, dark future of kids. Caps, CAPES, caps. Okay, caps means a large piece of land that sticks out into the sea from the coast. A large piece of land that stick out into the sea from the coast. It's called caps. So this was the difficult words in this paragraph. Okay. Now I told you the figure of speeches in this paragraph. That so figure of speeches are walls on shore cream walls. So walls are described to be dull, like off white. So the walls are described to be dull. Okay, so in this the figure of speech was metaphor. Okay, so the figure of speech was metaphor. Okay, and second is narrow street sealed in with a lead sky. Narrow street shielded in with a lead sky. So here the future of kids is described as limited. यहाँ पे बच्चों का future limited describe किया है. So here also the figure of speech metaphor. Okay, here also the figure of speech metaphor. So a narrow street sealed in with a lead sky and on shore cream walls, both having the
figure of speech, metaphor. And second figure of speech that used in this paragraph was like in this line, veld, flowery Trossel valley. Okay, so in this lines, B-E-E-E-E-E-E, Trossel valley, T-Y-R-O-L-E-S-E, and V-A-L-L-E-Y-E. So E was again and again repeating in this line. Okay, E was again and again repeating in this line, veld, flowery Trossel valley. So this figure of speech where the vowel sounds, E is repeating. Okay, it's called assonance. When the vowel sound repeating in any line in words. Okay, but it's not compulsory that it could be the first word or it could be the last word. It could be in between also. Okay, आप इस ये कंपलसरी नहीं है कि आपका जो वॉवल है वो रिपीट होने के लिए उसको फर्स्ट होना है या लास्ट होना है. ये बिटवीन भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट कुड बी इन द फर्स्ट और लास्ट. ओके, इट्स कॉल्ड एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच. तो इन दिस लाइन द फिगर ऑफ स्पीच यूज वॉज एसोनेंस because repetition of vowel sound E, like E, flowery E, Trossel valley E, valley E. So in there E is repeating continuously. So here the figure of speech assonance is using. Okay, now explain you the meaning of this paragraph. So the poet describes the walls of the school. Now the poet, in the first paragraph, poet is describing about the childrens. उसने कुछ बच्चे describe किए, tall girl, एक paper swimming boy, एक physical disabled बच्चा, एक छोटा बच्चा, he is not interested in the class. Okay, now in the second paragraph the poet describes the walls of the school. Okay, वो walls को describe कर रहा है स्कूल की. They are cream in color. वो बता रहा है poet that they were cream in color, like the color of white. ऑफ वाइट के जैसा कलर है. This means that walls are not clean. इसका मीन्स ये है कि walls clean नहीं है. They were not clean and they have not been painted recently. और उनको recently paint नहीं किया गया है. जब recently paint होती तो वो एकदम प्योर वाइट होती, अच्छी क्लीन अप होती, बट वो ऑफ वाइट है बिकॉज उनको recently paint नहीं किया गया है. The walls are covered with different charts. Many charts were there. बहुत सारे वॉल्स पर चार्ट्स हैं. इमेजेस और ऑल्सो देयर. एंड वो चार्ट्स और इमेजेस भी किसने दी हैं? डोनेशन से मिली हैं. ओके, वो भी किससे मिली हैं? डोनेशन से मिली हैं. किसी ने चैरिटी में दी हैं वो. सो किस किस के पिक्चर हैं? अब बता रहा है कि क्लास किस टाइप की है, किस किस के पिक्चर्स हैं. शेक्सपियर्स का पिक्चर है. ओके, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल. शेक्सपियर का पिक्चर है. शेक्सपियर एक राइटर एंड पोएट हैं फेमस. तो विलियम शेक्सपियर का पिक्चर है. हिज हेड विच इज़ बेल्ट. बेल्ट होता है जिसके सिर पे बाल नहीं होते, तो लाइक हॉरिजन लगता है. तो उसने सो हिज हेड विच इज़ बेल्ट लाइक द राइजिंग सन. सो स्टेफन स्पेंडर ने शेक्सपियर के हेड को राइजिंग सन, सिविलाइज्ड डोम बोला है ना, राइजिंग सन से कंपैरिजन किया है. लाइक जैसे उसका हेड पे हेयर्स नहीं है, सो इट वॉज लुकिंग बेल्ट. ओके, सो लाइक राइजिंग सन, सेमी सर्कल जैसे लग रहे हैं. सो ही वॉज कंपेयरिंग द हेड ऑफ शेक्सपियर विद राइजिंग सन. ओके, सेमी सर्कल, डोम शेप, लाइक डोम शेप. ओके, सेमी सर्कल. इट मीन्स टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज़ देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ फेमस. और वो एक पिक्चर है, एक फोटोग्राफ, एक सीनरी है किसकी? ट्रॉसल वैली की. पहली शेक्सपियर्स की फ़ोटो है एंड सेकेंड इज़ ट्रॉसल वैली की एक पिक्चर है जिसमें कि बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, आइज़ एंड एवरीथिंग. देयर इज़ अ इमेज ऑफ मैप ऑल्सो. एक मैप भी है, एक मैप भी है. येस, दे आर हैविंग अ मैप ऑल्सो एंड विच हेल्प्स अस ऑल नो ओन वे, बट फॉर दिस चिल्ड्रन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ इररिलेवेंट. एंड किसका मैप है ये? वर्ल्ड मैप है, नॉट इंडिया मैप, इट वॉज वर्ल्ड मैप. ओके, तो 3 things were there: शेक्सपियर्स पिक्चर, ट्रॉसल वैली photograph, scenery, and a world map. World map is there. So we all were aware of world map. हम सब वर्ल्ड मैप से अवेयर हैं, जानते हैं. बट
क्या इन बच्चों के लिए वर्ल्ड मैप रिलेवेंट है? नो, द वर्ल्ड मैप इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर देम बिकॉज द स्लम वेयर दे लिव इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ शोन इन द मैप। बिकॉज जिस स्लम में ये रहते हैं वो बहुत डिफरेंट है जो उनको दिखाई देता है इन रियलिटी में। वर्ल्ड मैप और इनका जो वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है दोनों के बीच में। ओके, बिकॉज वर्ल्ड मैप उनके लिए रिलेवेंट नहीं है। देयर वर्ल्ड इज़ ओनली व्हाट दे सी आउट ऑफ द विंडो। उनका वर्ल्ड बस इतना है जितना उन्हें विंडो से दिखाई देता है, जितना वो वर्क करने जाते हैं या फिर उनके घर की विंडो से दिखाई देता है, स्कूल की विंडो से जितना दिखाई देता है उनका वर्ल्ड बस उतना है। ओके, देयर फ्यूचर इज़ लाइक डार्क। ओके, नाउ द पोएट इज़ सेइंग दैट देयर फ्यूचर इज़ डार्क। उनका फ्यूचर जो है वो डार्क है, लाइक a narrow street sealed in with a lead sky. So the poet is saying that their future is full of darkness. उनका फ्यूचर full of darkness से भरा हुआ है। lead sky means darkness से भरा हुआ है, full of darkness. So their future is compared to narrow street. उनके फ्यूचर को narrow street से कंपैरिजन किया गया है, पतली गलियों से कंपैरिजन किया गया है। narrow streets, पतली गलियों से कंपैरिजन किया गया है। ओके, narrow streets which means that there is no wide scope. वाइड स्कोप नहीं है, मीन्स देयर नैरो स्ट्रीट्स, बहुत पतली मतलब जैसे नैरो स्ट्रीट्स होती हैं, पतली सड़कें होती हैं, वाइड अब वाइड होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स बनने लगी हैं, रोड्स वर वेरी ब्रॉड। ओके, बट ये बोला जा रहा है कि उनकी जो लाइफ है दे वर लाइक नैरो स्ट्रीट्स, दे डोंट हैव एनी वाइड स्कोप अवेलेबल फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ। उनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए कोई अच्छा स्कोप नहीं है। ओके, दिस चिल्ड्रंस आर फार away from the radiant light of knowledge because they were very far from the radiant light of knowledge। वो क्यों ऐसा है कि उनके लाइफ में उनके फ्यूचर में ग्रोथ नहीं हो रही है एंड they were in the darkness because they don't have the proper facilities of getting knowledge। उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, एंड दे वर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। वो बहुत दूर हैं उससे, far from the rivers, caps and stars of words, means they were very far from the light, they were very far from the education, knowledge, they were very far from rivers, caps and stars of words। और ये सब चीज़ें उन सब के बच्चों के लिए इररिलेवेंट हैं। शेक्सपियर्स हैड, ट्रॉसल वैली, वर्ल्ड मैप, दे ऑल वर इररिलेवेंट बिकॉज शेक्सपियर दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट। शेक्सपियर से अवेयर नहीं है, सो इससे अवेयर नहीं होते। ट्रॉसल वैली इतनी ब्यूटीफुल वैली है और उनका स्लम इतना डर्टी, इतना अनटाइडी, इतना अनहाइजेनिक रहता है, सो दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट। येस, तो इनके लिए ये भी इमेजिनेशन से बाहर है। वर्ल्ड मैप, दे वर नॉट एबल टू नो दैट वेयर दे आर लिविंग। जिस जगह वो रहते हैं स्लम में, उस पूरी सिटी में नहीं वो अच्छे से मूव ऑन कर पाते, घूम पाते हैं, तो वो हाउ दे नो द वर्ल्ड, हाउ दे गो थ्रू ऑल द वर्ल्ड एंड नो ऑल द वर्ल्ड, किस तरह से वो पूरे वर्ल्ड को जान पाएंगे। सो इट्स वेरी डिफरेंट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए। येस, बिकॉज एंड उनके फ्यूचर को नैरो बोला गया है, डार्क बोला गया है, और ये बताया गया पोएट ने डैट दे वर वेरी फार फ्रॉम द रे ऑफ नॉलेज। एक लाइट जो होती है ना नॉलेज की एंड एजुकेशन की, उससे बहुत दूर है। इफ़ एनी वन गेटिंग द पावर ऑफ नॉलेज, येस, इफ़ एनी वन गेटिंग द पावर ऑफ नॉलेज देन दे कैन अचीव सक्सेस इन फ्यूचर, बट इन बच्चों को ये पावर नहीं मिल पाती है। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ आई टॉट यू इन नेक्स्ट वीडियो।